मैडम साइड में, लेफ्ट साइड। First, today's operation in Pulwama district is another successful operation which has been carried out by police, CRP and the army together. Unfortunately, we have lost a brave head constable, Kale Sunil, in this operation. Otherwise, operations so far have been very neat and clean without any collateral damage on the civilian side and on our own side as well. Regarding Srinagar, yes, there has been a second encounter after a very short duration of time. Just a day ago, we have had a very successful operation in downtown Srinagar, carried out by police and CRP. Both the organizations did a wonderful job, and the best part was that the forces exercised a lot of restraint. As it happened during the last encounter, a couple of houses got damaged during the course of encounter. This time more meticulous planning was there, and they've been able to ensure that there is no collateral damage on the ground. Another thing about the operation in Srinagar was that our operation was delayed for 2 hours, just for one reason, to give an opportunity to the boys, to the militants, to come out and surrender. We got their family members, we got the local respectables to make an appeal to them. It's only when they did not budge and fired upon the security forces about the operation party, they had to retaliate, and that operation was carried out. But again, good thing was that operation was very neat and clean, without any collateral damage on any side. Operations are happening at a regular frequency now, and our ground forces are making an effort to stabilize, to further strengthen peace in this region. And I'm happy that so far our forces have been able to do very well on that count. Dilbag Singh, do you see any shift in the policy of militant outfits after they are getting blow every day? See, they've always been planning to go in for some big action. You remember 28th of last month we were able to neutralize a very big vehicle-borne IED in Pulwama district. That was meant for an attack on the security forces. Luckily, our alert forces on ground, police, CRP, army together were able to detect it and neutralize the threat. We have reports that the militants are again, especially Jaish-e-Mohammed, is again planning to have some big IED incident somewhere against the security forces, or any other incident directed against the security forces. We are exercising full restraint and full alert at all the levels. So I'm sure our alert troops would be able to take care of those designs. सर, कुपवारा लोलाब में भी अभी ऑपरेशन चल रहा है, और आज जो है श्रीनगर के हरवन में भी एक बड़ा जो है हाइडआउट बस्ट किया गया, इसके बारे में डिटेल बता दीजिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, दिन में लगभग 2 दर्जन ऑपरेशन चलते हैं, और 2 दर्जन ऑपरेशन में से कभी कभार 1, कभी 2 क्लिक करते हैं, कभी कोई भी नहीं करता है, ऐसा भी होता है। हमारी कोशिश है कि जो भी इत्तला हमें टेररिस्ट के बारे में आती है, टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में आती है, मूवमेंट के बारे में आती है, हम उस पर एक्ट करें। दिन रात फोर्सेस मिल करके काम कर रही हैं और हर इत्तला के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करती हैं। आज लोलाब में ऑपरेशन शुरू हुआ है, वहाँ भी कोई इत्तला थी कि वहाँ कोई हाइड आउट है जिसके अंदर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। एक दिन पहले कापरंद में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी, वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वी मिस दैट टारगेट। आज भी मलंगा में ऑपरेशन एक और चल रहा है, अभी भी ऑपरेशन जारी है, जिसके लिए हमें अभी इत्तला का इंतज़ार है कि फर्दर उसमें क्या डिटेल आती है, कामयाबी होती नहीं होती। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, 2 दर्जन से ज़्यादा ऑपरेशन एक दिन में लॉन्च करती हैं फोर्सेस मिलके, और इसी की वजह है इतनी मेहनत के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशन हमारा अच्छी इत्तला पर जो बेस्ड होता है वो कामयाब ऑपरेशन बन निकलता है। मेरा ख्याल है कि अभी शायद जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ था हार्डकोर मिलिटेंट्स का, जो जैश-ए-मोहम्मद के और बाकी जो पुराने जो मिलिटेंट थे, उनकी वजह से एक खौफ की फ़िज़ा रहती है। एक वजह और भी देखी जाती है कि जहां नया लड़का मिलिटेंसी में शामिल हुआ है, उसके साथ एक पुराना लड़का चल रहा होता है जिसका दबाव नए वाले लड़के के ऊपर रहता है। हो सकता है कि अंदर की सिचुएशन ऐसी रहती हो कि पुराने वाला नए वाले के ऊपर दबाव डाल के रखता हो, उसको सरेंडर ना करने देता हो।
मगर इसके बावजूद भी हमारी ये कोशिश और अभी जारी रहेगी। So one more question is that the guy who was missing from Ganderbal, there were a lot of rumors and confusion over him. So has he joined in militants? What are your reports? Because the family says that there were no such thing as of now. हाँ ज्वाइन कर लिया वो। So he has joined. Which organization, sir? HM। सर प्लीज Sir, can you explain the details? अभी नहीं बताएंगे। सर अभी सर जैश के पास से अगर हम कहें कोशिश चल रही है कि जैश को M4 कार्बाइन राइफल पहुंचाया जाए और इसका एक इंसिडेंट कठुआ में भी देखने को मिला है। तो आपको इस पे क्या कितनी सत्य है ये रिपोर्ट्स कि जैश जो है एक्सपर्टाइज रखती है M4 कार्बाइन चलाने में और इसलिए कमांडर्स यहाँ से ही कह रहे हैं कि M4 कार्बाइन उनको मिलना ही चाहिए? 3 दिन पहले जो ऑपरेशन कैरी आउट हुआ जिसमें इमरान भाई पाकिस्तानी जैश मोहम्मद का टेररिस्ट मारा गया, उसके साथ एक और फॉरेन टेररिस्ट था। उस ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट एक मरा मगर वेपन 2 पकड़े गए और दूसरा वेपन MO4 राइफल ही था जो US मेक है। जैश मोहम्मद जो है इसके पास MO4 का ठीक ठाक इस्तेमाल करने की कैपेसिटी भी है, एक्सपर्टीज़ भी है और ये इनका काफ़ी हद तक प्रेफर्ड व्हीकल है क्योंकि ज़्यादा लंबे फासले से इससे मार कर सकते हैं और काफ़ी कारगर वेपन है क्योंकि इसके ऊपर साइट वाइट बाकी सब चीज़ें लगी रहती हैं। इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के ज़रिए से MO4 राइफ़ल जो है वो हीरानगर सेक्टर में 4 दिन पहले फेंकी गई। BSF ने उस ड्रोन को मार गिराया। इनकी डिमांड बार बार रहती है कि वहाँ से MO4 राइफ़ल और इसके साथ ग्रेनेड और बाकी सामान और भेजें। पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं मगर उनको बार बार नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से और भी कोशिशें हो रही हैं कि जैश मोहम्मद के और कार्डर्स और लश्कर तौबा के और कार्डर जो हैं कश्मीर के अंदर भेजे जाएं। उसके लिए चाहे उनको IB सेक्टर का इस्तेमाल करना पड़े जम्मू में, जहाँ फिर रजौरी पुंछ के सेक्टर में कल परसों से भी नौशहरा सेक्टर फिर से बहुत एक्टिव चल रहा है। नौशहरा सेक्टर में अभी 1 हफ्ते से थोड़ा टाइम पहले ही एक आतंकियों का 3 का ग्रुप मारा था जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहा था। कुपवारा का केरन और बारामूला सेक्टर में ज़बरदस्त कोशिश चल रही है कि उस जगह पर सीज़ फायर वायलेशंस की आड़ में और आतंकियों को इस तरह भेजा जाए। वहाँ भी आर्मी इनकी कोशिश जो इस तरह की उनको नाकाम कर रही है। सो हमारी बॉर्डर ग्रिड एंड हिंटरलैंड ग्रिड दोनों ही तालमेल के साथ काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें और कामयाबी हासिल होगी। DGP Singh, you said that M4 is with this Jaish.